Yes, madam. Who is going to tell me the reproduction in case of angiosperms? Reproduction in case of angiosperm. Who can explain? Gurleen? Yes, madam. Gurleen, can you speak? Any other student who can explain? Manjot? Yes, madam. Manjot? You can unmute yourself and speak if you know. How many students are not revising the topic every day? So last time I'm repeating the same topic. Okay, children, it is already discussed in the parent teacher meet too. Whenever any question is asked to you, you are supposed to speak. ठीक है, if you are not speaking anything, तो teacher ये मान लेगा कि आपको topic clear नहीं है, या फिर you are not physically present. You are doing something else which are not desirable. ओके बेटा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको ये बताया अब तक कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज दे आर द मल्टीसेलुलर एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो हेयर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एज यू नो दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स or male and female you can say sex organs, they are actually present in the flower. Okay, you have heard about the name of the male reproductive organ, that is stamen, and female reproductive organ is pistil or carpel. So first I am talking about stamen. So what is stamen? Stamen, which is also known as androecium, consists of two components. Okay, one is anther and another is a filament. So I have described that when you see the structure of the anther, ठीक है, what you see inside the anther, ठीक है, a typical anther, it is actually a bilobed structure. Okay, a typical anther is actually a bilobed structure, means how many chambers are there in the anther? When it is at its preliminary stage, so two lobes are there. ठीक बेटे, दो lobes होते हैं anther में. But later on, when you take the transverse section of the anther, means when you cut the anther in a transverse way, then what you see that anther is a tetralobed structure. Anther आपको कैसा नजर आता है? एक tetralobed structure की तरह नजर आता है. देखो ऐसे, ठीक बेटे, how many chambers are there now? तो 4 chambers are there or 4 pollen sacs are there. Okay, so these pollen sacs, they are initially they are the hollow type of structures. शुरू में ये कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, ठीक बेटे. तो उसके बाद वो कहते हैं कि when the anther it gets mature, जैसे जैसे anther mature होता है, these pollen sacs they also develops into deep pocket like structures. ये भी deep pocket like structures में develop हो जाती हैं. और ये जो pocket like structures हैं later on उसमें क्या देखा जाता है? तो these pocket like structures which are known as pollen sacs, they have so many cells present inside them, but those group of cells which has to undergone the process of meiosis. Okay, so these cells they suddenly enlarge themselves. ये सेल जो हैं जिन्होंने meiosis में जाना होता है ना, ये अपनी जो साइज है उसको एकदम से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है. They store abundance of cytoplasm and their nucleus it also become prominent. So these group of cells are known as microspore mother cells. Okay, so remember कि inside the pollen sac microspore mother cells are there, and these microspore mother cell when they undergoes meiosis, then what happens? So these microspore mother cells on meiosis they produce pollen tetrads,
I am using the term pollen tetrads. Tetrad means how many pollen grains they are joined together. Four pollen grains are joined together. Okay, but this is not the case for a longer time. After some time, what happened? The water it dehydrates from these pollen tetrads, and each of the pollen grain they get separated from each other. ठीक है, तो चारों जो पोलन ग्रेन्स हैं उसमें से जो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स हैं उसमें से वाटर डिहाइड्रेट कर जाता है, और वाटर डिहाइड्रेट करने के बाद सिंगल पोलन ग्रेन जो है वो रह जाते हैं यहाँ पर, and each pollen grain it assumes its own identity. Now these pollen grains later what they have to do when they becomes mature. Okay, beta. So these pollen grains they comes out from the anther on bursting of the wall of the anther. ठीक है, तो in class 12 you are going to study about the entire process. I am not here going to explain you in detail, पर अभी फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि जब anther mature हो जाना है, then these pollen grains they comes out by bursting of the ball of anther, and as soon as they fall on the stigma of a flower they start germinate. ठीक है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि how the stigma identified that this is the compatible pollen grain, ठीक है, who is required to germinate. तो देखो स्टिग्मा जो है वो खास तरह के केमिकल्स रखता है. By virtue of those chemicals, they are able to identify whether this pollen grain is of the same species or not. ठीक है, अब देखो नेचर में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रोज का पोलन ग्रेन जाके रोज पे गिरने वाला है. कई बार सनफ्लावर का भी रोज पे गिर सकता है आकर. तो in that situation, the stigma of the rose flower they produce certain specific type of chemicals, and by which they are able to identify whether the pollen grain they belong to the same species or not. If the pollen grain is a compatible one, or you can say it is the right one, then it is allowed to germinate. और जैसे ही pollen grain germinate करेगा, it produce a pollen tube. और आपको ये भी पता है कि pistil के 3 components हैं, stigma, style and ovary. So this pollen tube it grows through the style. स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है एंड ओवरी तक पहुंचती है, एंड एज सून एज इट पेनिट्रेट्स द ओवरी व्हाट दिस पोलन ग्रेन फाइंड एक्चुअली, सो इट कम्स इन कांटेक्ट विद सो मेनी ओव्यूल्स, एंड लेटर ऑन द पोलन ट्यूब डिसाइड ऑन व्हिच ओव्यूल दैट पोलन ट्यूब वांट्स टू एंटर. तो उसमें से कोई भी ओव्यूल जो है उसके अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है. पर आपको पता है कि जैसे ही वो पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल जो है उसको पेनिट्रेट करेगी, so what that pollen tube find inside the ovule? So you know that inside the ovule an embryo sac is present, और embryo sac के अंदर क्या present है, how many nucleus? So that you also know कि यहाँ पर nucleus कितने present हैं. तो 3 नीचे हैं, 3 ऊपर है और 2 बीच में है. ठीक है बेटे, 3 + 3 6 हो गए, 7 8. ठीक बेटे, तो यहाँ पर जो है हमें 8 nucleus जो है वो नजर आने वाले हैं, और 2 न्यूक्लियस जो सेंटर में है ना, दे आर नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई, एंड दोस न्यूक्लियस व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल व्हिच इज एक्चुअली द एंटीपोडल एंड. सो दीस 3 आर नोन एज द एंटीपोडल्स, एंड दोस दैट आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द एम्ब्रियो सेल they are collectively known as egg apparatus, because in the central part of that egg apparatus egg cell is there, and this egg cell is surrounded on right and left side by the synergids. तो कल मैंने आपको जो है एक दिन पहले synergids के फंक्शन के बारे में भी बताया था कि these synergids actually guide the pollen tube that where the egg cell is present. ठीक बेटे, तो ये synergids जो है ना, इनमें खास तरह के apparatus होता है जिसको हम filiform apparatus कहते हैं. filiform apparatus, that is FILIFORM, filiform apparatus. तो ये जो filiform apparatus होता है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि here is the location of the eggs. अब देखिए, ये तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसके बारे में. अब आपको पता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हमने क्या नेम दिया है, पिस्टल एंड कार्पल, एंड इट हैज 3 कंपोनेंट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, and here everything is related with this ovary. So this ovary is actually the part that is present at the base of the pistil. ओके बेटे, इट इज ग्लोबुलर एंड स्वॉलन इन शेप. ये गोल मटोल होता है एंड स्वॉलन होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आपको बताया था कि इनसाइड दिस ओवरी अ कैविटी इज देयर, एंड दैट कैविटी इज ओवरियन कैविटी, एंड इनसाइड द ओवरियन कैविटी प्लासेंटल टिश्यू इज देयर. ओके बेटे, तो प्लासेंटल टिश्यू होता है, प्लासेंटल टिश्यू के साथ कनेक्टेड हैं बहुत सारे ओव्यूल्स.
ठीक बेटे। तो अब वो कहते हैं कि न्यू सेलस टिश्यू भी होता है। तो जैसे आपको बताया था कि वे एंथर जो है ना उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे भी ओवरी के अंदर जो न्यू सेलस टिश्यू है उसमें सारे के सारे सेल्स जो हैं दे आर नॉट actually acting as the megaspore mother cell. Okay, there are few cells who are ready to go into the process of meiosis. So those cells who want to go into the process of meiosis, they are actually known as the megaspore mother cells. Okay बेटे, तो ये जो megaspore mother cells है ना उसमें meiosis होगा। meiosis होने के बाद how many megaspores are formed? As you have learned in gymnosperms too, that 4 megaspores are formed. So here in angiosperms also 4 megaspores are formed, and out of these 4 megaspores 3 degenerate हो जाएंगे and only 1 survive. Okay, तो ये जो surviving megaspore है ना उसी में फर्दर डिविजन्स होती हैं, माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, और वही आगे जाके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ठीक है, तो सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है इसको हमने ओव्यूल बोला है, वो फिर अगेन एंड अगेन माइटोटिक डिवीजन करता है, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन करता है, और कितने जो है न्यूक्लियस बना देता है, 8 न्यूक्लियस बना देता है। और ये सर्वाइविंग मेगास्पोर इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक बेटे, तो उसके बाद एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ऊपर वाले 3 जो हैं दे आर नोन एज एंटीपोडल्स, बॉटम 3 आर एग एपैरेटस एंड सेंट्रल 2, ठीक है, which are not connected with each other, they are known as polar nuclei. अब फिर से वहीं लौटते हैं जहां पे पहले थे कि when the pollen tube it passes through the style, then what happens? तो देखो जब पोलन जर्मिनेट किया तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी तो था, पोलन ट्यूब तो निकली है उससे। अब जो न्यूक्लियस है ना पोलन ग्रेन का, दैट गोज इनटू द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ठीक बेटे, सभी बच्चे याद रखेंगे कि मियोसिस एक बार ऑलरेडी हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं होगा। अब क्या होना है, माइटोसिस होना है। तो as soon as the pollen nucleus is enter into the pollen tube, then this pollen nucleus it undergoes mitosis. I am saying mitosis. Okay, so after mitosis the pollen nucleus it divide and form 2 nuclei. ठीक है, 2 nuclei बनाता है, one is of larger size and one is of smaller size. The larger nucleus it is known as the vegetative nucleus and the smaller nucleus it is known as the generative nucleus. ठीक बेटे, तो बड़े साइज वाले को वेजिटेटिव बोला है एंड छोटे साइज वाले को जेनरेटिव बोला है। तो देखो वेजिटेटिव में कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, पर जेनरेटिव में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगी एंड 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। अब सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि पोलन ट्यूब में अब 3 चीजें हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है एंड 2 मेल गैमेट है। तो सच टाइप ऑफ पोलन ट्यूब it now start proceeding towards the ovule, it penetrates the ovule, then it penetrates the embryo sac and it has to release the male gametes. But what about the vegetative nucleus? तो देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कभी भी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर नहीं करता, वो पोलन ट्यूब के अंदर ही डीजेनरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, एंड द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस it actually acts as source of nutrition for the developing male gametes. ठीक बेटे, as soon as they enter into this embryo sac, pollen tube, then it start penetrating the ovule, the embryo sac, it enters through the micropylar end which is the bottom end. ठीक है, it passes through one of the synergid, एक synergid में से ये pollen tube जो है वो embryo sac के अंदर एंटर करती है। तो आपको बताया था कि what is the function of synergid? The function of synergid is to guide the pollen tube that here is the location of the egg cell. ठीक, so as soon as the pollen tube enter, the tip of the pollen tube burst and all the 2 male gamete it enters into the embryo sac. Okay, immediately one first male gamete it start moving towards the egg cell because it get information from the synergid about the location of the egg cell. It fuses with the egg cell, and now what is going to be formed? So you know that zygote is going to be formed. ठीक बेटे, मेल गैमेट भी 1n था, egg cell भी 1n था, दोनों फ्यूज हो गए, 2n बन गया यानी जाइगोट बन गया। ठीक बेटे, तो यही जाइगोट बाद में जाके एम्ब्रियो बनेगा। ओके, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखे जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में, सभी बच्चों को पता है। तो दिस फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विद द एग सेल इज नोन एज सिनगैम। Then what about the second male gamete? So this second male gamete now move towards the 2 nuclei, 2 polar nuclei
which is present in the big cell which is known as central cell. They fuses with the two polar nuclei and form the triploid structure. ठीक है, तो सेकंड मेल गैमेट भी 1n था, दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी 1n + 1n थे, तो तीनों मिलके क्या बन गए 3n बन गए हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए हैं। एंड ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है इसको नेम दिया गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक बेटे, तो दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस after so many mitotic division it develops into a nutritive tissue which is known as endosperm। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। एंड यू नो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इट अ काइंड ऑफ ए न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। एक चीज याद रखेंगे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है जाइगोट का बाद में, वो भी मैंने आपको बता दिया था, सो दैट द जाइगोट ऑब्टेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म बाद में बनता और जाइगोट पहले बन जाता तो इन लैक ऑफ न्यूट्रिशन द जाइगोट विल गोइंग टू बी डाई। ओके बेटे, तो सेकंड जो फ्यूजन हुई है ना यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो हाउ मेनी टाइम फर्टिलाइजेशन हियर टेक्स प्लेस? 2 times। ओके, फर्स्ट फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विद egg cell to form zygote, and second is the fusion of second male gamete। ठीक है, the fusion of second male gamete with 2 polar nuclei which is known as triple fusion, this is the second fertilization। So as the fertilization takes place twice, so it is known as a double fertilization। अब क्या होना है, अब सबको पता है कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड सारे के सारे इवेंट किसके अंदर हो रहे हैं? ओव्यूल के अंदर हो रहे हैं। ओव्यूल में ही एम्ब्रियो सेट था, उसी में जाइगोट बना था, उसी में एम्ब्रियो बना है। नाउ द ओव्यूल, ठीक है, आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी इट डेवलप्स इनटू सीड, ये सीड बन जाएगा। और जो ओवरी है, क्योंकि ओव्यूल भी किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी में, तो ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज एन ओवरी, या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ फ्रूट। ठीक है, यू हैव लर्नड इन क्लास 8th, अगर आपको याद आ रहा है क्लास 8th में भी आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज अ फ्रूट, अ राइपन्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाते हैं। ओके बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट, तो सी आई एम ऑन पेज नंबर 42-43 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और वहां पे देखिए आपको बताया गया है, एक कंक्लूड किया गया बेटे चैप्टर को लास्ट एक टॉपिक के अंदर, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो आई हैव एक्सप्लेन दिस टर्म सो मेनी टाइम। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस कि in the life cycle of the plant generally 2 type of phases are there। ठीक है, one is the haploid phase which is actually the gametophytic phase of the plant and another is the diploid phase which is actually the sporophytic phase of the plant। तो हमेशा प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक फेज है ना, ये एक दूसरे को रिपीट करते रहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। So it is actually the repetition of the gametophytic and the sporophytic phase, one above the another। So this repetition of the different phases, it is known as alternation of generation। Okay बेटे, तो अब देखिए, अब कहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सच प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट फेज था? कैन एनीबॉडी ऑफ यू? यस बेटे, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज जो था वो डोमिनेंट था? हाँ जी बोलिए, एनी स्टूडेंट कैन स्पीक? नोबडी? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में बिल्कुल। और एल्गी के बारे में क्या ख्याल है? एल्गी के बारे में, एल्गी भी बेटे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही रखती है। ठीक है, एल्गी जो है उसमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होता है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है। ठीक, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको मैं बता दूं कि ब्रायोफाइट्स में, ठीक बेटे, ब्रायोफाइट्स में आपको हमने ये बताया था कि ब्रायोफाइट्स जो है उसके अंदर जब जाइगोट फॉर्म होता है ना,
तो जाइगोट जो है उसके बाद किसमें डेवलप हो जाता है, स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट में आगे जाके कैप्सूल में मियोसिस होती है एंड हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करती है, देन दीज हैप्लॉइड स्पोर्स दे लेटर फॉर्म द plant body, main plant body of the bryophyte, which is haploid in nature or gametophytic phase, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, वो कहता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर प्लांट का लाइफ साइकिल जो है उसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, तो उस केस में वो कहते हैं कि प्लांट जो है इसमें हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट है, तो उसमें जब भी कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा ना, जैसे जाइगोट बने, तो हमेशा उसमें लास्ट में क्या होनी है, जाइगोट जो है वो जिस भी स्ट्रक्चर में डेवलप होता है उसमें मियोसिस हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो जाइगोट में मियोसिस हमेशा याद रखिए कब होती है, जब पर्टिकुलर प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक होता है, मेन जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड फेज उसमें डोमिनेट होता है, तो हमेशा जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और वो जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी या गैमेटोफिटिक बॉडी को बनाते हैं, जी बेटे। इसके अलावा आपने जब टेरिडोफाइट स्टडी किए थे तो मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट का द प्लांट व्हिच इज विजिबल टू योर आईज, it actually bears true root, true stem and true leaves. This means it is not a gametophyte, it is actually a sporophyte. ये एक sporophyte होता है। तो जो फेस आपको सबसे पहले नजर आता है ना, वही फेस किसी भी प्लांट में डोमिनेंट फेस है। तो हमेशा याद रखिए कि टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में, ठीक बेटे, कौन सा फेस डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट है। तो उसके बेसिस पे उसने आपको 3 तरह के जो हैं, 3 से 4 तरह के आपको जो है बताए हैं उसने, लाइफ स्पैन कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखो, देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स जिनका की लाइफ साइकिल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड फेज ही नजर आता है, तो ऐसे प्लांट्स जो है उनके अंदर एल्गीज आ जाती हैं, ठीक बेटे। तो एल्गीज जो है उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ आपके लिए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है या हैप्लॉन्टिक फेज जिन प्लांट्स के अंदर डोमिनेंट होता है उसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इट इज रिप्रेजेंटेड एज हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि उसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है उसमें सिर्फ आपको जाइगोट नजर आता है, पर बाद में क्या होता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करती हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं, मेन प्लांट बॉडी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एल्गी है, तो एल्गी जो है उसका थैलस जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक बेटे। तो एल्गीज के अंदर जब गैमीट्स बनेंगे या स्पोर्स बनेंगे, तो वो स्पोर जब फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक फेज को डेजिग्नेट करेगा क्योंकि वो डिप्लॉइड होगा, पर लेटर ऑन उसमें मियोसिस हो जाएगी एंड मियोसिस होके फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और जब वो जर्मिनेट करेंगे दे फॉर्म द थैलस ऑफ द एल्गी। तो ये वाला जो फेज है वो उसका हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि एल्गीज के केस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड यू हैव हर्ड द नेम ऑफ सो मेनी एल्गीज लाइक स्पायरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, ठीक है। इन सभी के अंदर हैप्लॉइड फेज डोमिनेट होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस हमेशा जाइगोट में होती है, ओके बेटे। उसके बाद वो कहते हैं कि देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट वन। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें कि डिप्लॉइड फेज डोमिनेट होता है उसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और कहते हैं कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें 2 एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड वी हैव एंजियोस्पर्म्स, ठीक बेटे। अब रिकॉल करिए जरा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल अपने माइंड में, तो आपको याद आ जाएगा कि व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज दे फॉर्म जाइगोट, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए थे तो उन्होंने जाइगोट बनाया, एंड जाइगोट से फिर आगे जाके एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो उसके बाद मेन प्लांट बॉडी हमें मिल जाएगी। तो पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में आपको, ठीक बेटे, डिप्लॉइड फेज डोमिनेट नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्री है वो भी डिप्लॉइड है, उसके ऊपर जो ब्रांचेस हैं, लीफ हैं, रूट्स हैं, वो सारे भी डिप्लॉइड है, ठीक है। फ्लावर इटसेल्फ भी डिप्लॉइड है, फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टल भी डिप्लॉइड है, ठीक है। तो स्टेमन एंड पिस्टल के अंदर क्या बनेंगे, याद आ रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, तो वो भी तो डिप्लॉइड थे,
और पर उसमें जब मियोसिस हुई थी तो फिर क्या बने थे, पोलन ग्रेन, एंड उधर एग सेल बना था। ये कैसे थे, हैप्लॉइड थे। तो हैप्लॉइड फेस आपको गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही नजर आता है। बाकी सारे जो हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो डिप्लॉइड होते हैं, तो यानी ओवरऑल डिप्लॉइड फेस ज्यादा है और हैप्लॉइड फेस कम है, इसलिए लाइफ साइकिल जो है वो कौन सा है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके बेटे, तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो अगर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की एग्जांपल देनी है, यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके बेटे, इसके अलावा वन अनदर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज देयर, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज दैट लाइफ साइकिल इन विच, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट द हैप्लॉइड फेस इज द डोमिनेंट वन and then the diploid phase also come for some time, okay, and कुछ समय रहने के बाद फिर से हमें हैप्लॉइड फेज जो है वही ज्यादा नजर आता है। ठीक बेटे, तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर हम ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट की बात करें, देखो मैं ब्रायोफाइट की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल में आपको बताया था द मेन प्लांट बॉडी इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए थैलस, ठीक है, लीफ लाइक ऑर्गन्स आर देयर एंड ऑन दिस लीफ लाइक ऑर्गन्स फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप। ओके, so these fruiting bodies may be anthridiophore, archegoniaphore. They bear the male sex organ anthridium, archegonium. Then inside the anthridium, male gametes or anthrozoid are formed, and inside the archegonium, ठीक है, फीमेल gametes और egg cell is formed. यही थी ना पूरी स्टोरी। तब वो कहता है कि इसमें आपने क्या देखा कि भाई एंथ्रोजोइड जो थे, ठीक बेटे, और जो वहां पे एग सेल फॉर्म हुआ है, ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड है, पर जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और आपको बताया था कि जाइगोट जो है वो फिर एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, एंड जाइगोट न्यूक्लियस गोज इनटू द कैप्सूल एंड लेटर ऑन द न्यूक्लियस इट अंडरगोज, क्या होता है उसके अंदर, मियोसिस होती है, ठीक है बेटे, और उसके बाद फिर से उसमें से क्या निकलती हैं, हैप्लॉइड स्पोर, ये जर्मिनेट करते हैं और फिर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर या थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि हमें जो हैप्लॉइड फेस है वो डोमिनेंट नजर आया, पर जाइगोट के बाद थोड़े समय के लिए स्पोरोफाइट बना है जिसमें फुट, सीटा एंड कैप्सूल आर देयर, बट अगेन व्हेन मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जाइगोट देन the haploid spores are formed। यानी ओवरऑल हमें हैप्लॉइड फेस ज्यादा और डिप्लॉइड फेस थोड़ा सा नजर आया है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। पर अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो आपको याद है कि टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है फर्न प्लांट की, वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में होती है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं, ठीक बेटे, याद आ रहा होगा आपको। और उनके लीव्स को हमने क्या नेम दिया था, स्पोरोफिल्स का, छोटे लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, बड़े लीफ मेगास्पोरोफिल। उस पे कोन्स लगे थे, मेल एंड फीमेल स्टोबुलाई, और मेल और फीमेल स्टोबुलाई जो है उसके अंदर क्या थे, स्पोरेंजिया थे, ठीक है बेटे। तो जो मेल स्टोबुलाई था उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया थे, फीमेल स्टोबुलाई में मैक्रो या मेगास्पोरेंजिया थे, और उनके अंदर प्रेजेंट थी माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो फिर आपको बताया था कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनके अंदर मियोसिस हुई, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद क्या बने हैं, स्पोर्स बने हैं। उसी तरह से मेगास्पोर में भी मियोसिस हुई, उनमें भी स्पोर्स बने। तो कुछ स्पोर्स छोटे साइज के बने जिनको माइक्रोस्पोर बोला गया, कुछ बड़े साइज के बने जिनको मैक्रो या मेगास्पोर बना गया। जब वो जर्मिनेट किए, ठीक बेटे, अगर एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो 2 तरह के स्पोर है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, और जब दोनों ही जर्मिनेट करेंगे तो दे फॉर्म द थैलस, ठीक है। एंड ये जो थैलस बना है ना, क्योंकि मियोसिस होने के बाद स्पोर के जर्मिनेट होने से बना है, तो इसको हमने प्रोथैलस बोला है। ये इसका गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट, और इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन लगते हैं, एंथ्रिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, उसपे एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, उसके अंदर एंथ्रोजोइड एंड एक्सेल जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक बेटे। तो इसमें देखो गैमेटोफिटिक फेस आपको प्रोथैलस से नजर आया कुछ टाइम के लिए, पर जब वो कहता है कि एंथ्रोजोइड और ये जो एक्सेल है ना, ये फ्यूज कर जाएंगे तो फिर से जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट जो है
वो फिर किसमें डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट इटसेल्फ कैसा है, जाइगोट जो है वो इटसेल्फ डिप्लॉयड है और प्लांट बॉडी जो है मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड है, तो जाइगोट जो है इट जर्मिनेट, ठीक है, एंड ये फॉर्म करेगा मेन प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट। तो देखो ओवरऑल हमें लाइफ साइकिल कौन सा ज्यादा यहाँ पे नजर आया, डिप्लॉयड, और जो थोड़ा सा नजर आया दैट इज हैप्लॉयड। तो सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो जब आपको एग्जांपल दिया जाता है टेरिडोफाइट का तो फटाफट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। अगर ब्रायोफाइट का एग्जांपल दिया जाता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। अगर आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल दिया जाता है तो यू मस्ट नो कि इनका लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड फेस इसमें ज्यादा डोमिनेंट है। और अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एल्गी का तो आपने याद रखना है कि एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, ठीक है बेटे। तो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर 3 and this is also the syllabus of your PT1 exam. तो PT1 एग्जाम में these 3 chapters are going to be selected, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे PT1 एग्जाम में। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है बेटे। तो नाउ आई एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव 4 minutes with me, so I want to discuss the question answer. Please all of you come on page number 44 back exercise question, ठीक बेटे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यस स्टूडेंट, गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दोस हु नो द आंसर ना दे विल स्पीक, दे विल रेज देयर हैंड्स, ठीक है, सो दैट दे कैन स्पीक द आंसर एंड अदर्स कैन लिसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? यस चिल्ड्रन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? एल्गी जो है उसको क्लासिफाई करने के लिए कौन से बेस लिए गए हैं, कौन से बेस पॉइंट्स को कंसीडर किया गया? हाँ जी, एनीवन ऑफ यू कैन स्पीक, और इफ यू हैव एनी आइडिया यू वांट टू डिस्कस विद अदर्स। यस बेटा, न्यू स्टूडेंट्स कैन आल्सो गिव द आंसर, न्यू स्टूडेंट्स कैन आल्सो गिव द आंसर। अर्पणा, योर माइक इज नॉट ऑन, ठीक है, if you have not connected your mic how can you listen me? Yes but anybody want to give the answer? No one? Pigment, color pigment. And Srishti, you want to tell the answer? Speak loudly if you want to. Algae are divided into 3 parts: Chlorophyceae, RHODOPHYCEAE and RHODOPHYCEAE। बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने एल्गी की जो 3 क्लासेस है ना उसको किस बेस पे क्लासिफाई किया है। मैंने आपको कहा था कि देयर इज वन टेबल दैट इज गिवन इन योर चैप्टर, ठीक है, सी दैट टेबल, उसी में वो सारे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं जिनके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। देखो ये वाला टेबल, सभी बच्चे सी दिस टेबल, ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? नंबर 1 मेजर पिगमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द मेजर पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लास ऑफ एल्गी? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास क्लोरोफाइसी, तो यू नो दैट कि क्लास क्लोरोफाइसी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द डोमिनेंट पिगमेंट। अगर हम क्लास फियोफाइसी की बात करेंगे तो डोमिनेंट पिगमेंट इज फ्यूकाजेंथिन एंड अलोंग विद क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। अगर हम क्लास रोडोफाइसी की बात करते हैं तो अलोंग विद क्लोरोफिल ए एंड डी, then other dominant pigment is phycoerythrin, that is rhodophyceae and phycoerythrin. Second जो है that is stored food, ठीक है, food is stored in which form? तो chlorophyceae में starch की form में, and in you can say in case of phaeophyceae the complex carbohydrates mannitol and laminarin, and if we are talking about rhodophyceae then in case of rhodophyceae the food is stored in the form of Floridian starch, ठीक बेटे। तीसरा सेल वॉल के बेसिस पे, तो देखो सेल वॉल क्लोरोफाइसी में सेलुलोज से बनी है, इन फियोफाइसी इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन,
and in case of rhodophyceae it is made up of cellulose, pectin and polysulfate esters. ओके मैडम, नंबर ऑफ फ्लैजिला भी वेरी कर रहे हैं सभी क्लासेस में. क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ प्रेजेंट एट एपिकल पोजीशन, एंड इन थियोफाइसी 2 है, अनइक्वल है, लिटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है. और रहोडोफाइसी जो है उसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है बिकॉज नॉन मोटाइल होते हैं इसके गैमेट्स भी और स्पोर्स भी. ठीक बेटे, तो ये सारे आप याद रखेंगे. एक पॉइंट हैबिटेट का भी ऐड कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. तो याद रखिए क्लोरोफाइसी ज्यादातर फ्रेश वाटर में हमें मिलती है और कुछ फॉर्म्स ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर में भी होती है. एंड फियोफाइसी एक मैरीन एल्गी है, तो हमेशा ओशन में ज्यादा मिलेगी. ठीक बेटे, फ्रेश वाटर में भी थोड़ी बहुत मिलती है, पर ब्रैकेट में देखिए लिखा है रेयर, बहुत कम मिलती है. ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में मिलती है. रहोडोफाइसी, तो रहोडोफाइसी भी ट्रूली मैरीन एल्गी है. इट इज फाउंड इन ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर एंड वेरी लेस इन फ्रेश वाटर. तो ये बेसिस है एल्गी के क्लासिफिकेशन. ओके बेटे, देयर इज वन मेथड